Hello students and welcome to eTutions, Education for Better Tomorrow. I am Devashmita and I am here to teach you English. So, as you can see on my screen that today we are going to read the chapter number 2 of your Honeysuckle book. Okay, and the name of the chapter is How Dog Find Himself a Master. Okay, so here we are going to learn about an interesting topic related to dog. Okay, so let's start. So everybody know this creature? Of course you know. Okay, so this is the dog, the man's best friend. Okay, तो आपने बहुत सारी जगह पे ऐसा सुना ही होगा, कुत्ते जैसा वफादार कोई नहीं होता. Nobody is as loyal as a dog. Okay, so that's why dogs are the best friend of human beings. Okay, so for like अगर आपने कभी किसी कुत्ते को रोटी खिलाया होगा, so they know that it's you, right? They would recognize you. So this is their loyalty. Okay, they can recognize you. So let's see what happens in the story related to the dogs. So now let's read a story how dogs become our pets. Okay, so now see in the pictures there are so cute dogs here. So now we will read that how these creatures become our pets. Okay. Okay, so from the book we are reading this text, right? So dogs were once their own masters and lived the way wolves do. Okay, so my dear children, do you know what is a wolf? Yes, of course, if you have seen in the Discovery channels, then yes, of course, that the wolf is a creature similar to the dog. They look alike the dog, but they are wild animals. But we can see that dogs are basically our pet animals, right? जिसको हम लोग ट्रेन कर सकते हैं, जो हमारी बातें मानते हैं. Okay, so until our dog was born, dogs were once their own masters. ठीक है, तो हम लोगों को पता है कि एक टाइम पे क्या डॉग्स भी वाइल्ड हुआ करते थे. And they were the animals who used to live in jungle. They were their own masters. वो किसी की बात नहीं मानते थे, किसी के घर पे नहीं रहते थे. Okay, they used to be the wild animals, right? Just as like the jackals and wolves and lion, tiger, जो भी आप बोल सकते हो, इन जैसे वो भी जंगल में freely घूमते थे. Until a dog was born who was ill pleased with this way of life. ठीक है, फिर एक दिन क्या हुआ, ऐसे कुत्ते का जन्म हुआ who is not liking this way of lifestyle. ठीक है, कि अकेले घूमना, अकेले खाना ढूंढना, फिर उनसे छुपना जो आपसे ज़्यादा ताकतवर है. So he was not so much pleased or happy about this kind of life. Okay, he was sick and tired of wandering about himself. ठीक है, एंड वो अकेले घूमते घूमते थक गया था कि लाइक उसको भी दोस्त चाहिए थे या फिर उसको भी कोई मास्टर चाहिए था, राइट? ओके, about by himself, looking for food and being frightened of those who were stronger than him. ठीक है, तो ऑब्वियसली जो आपसे ज़्यादा ताकतवर होते हैं, you would be obviously scared of them, right? So he was like very much unhappy about this kind of life that कि क्या यार अकेले घूमना, अकेले खाना ढूंढना, फिर अकेले आके सो जाना, फिर कोई अगर हमसे ज़्यादा ताकतवर आए तो लाइक उससे छुपना. सो ही वाज नॉट हैप्पी अबाउट दिस काइंड ऑफ लाइफ. He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on the earth, and he set out to find a master. ठीक है, सो अब क्या होता है कि नाउ द डॉग हैज थॉट एंड थॉट, बहुत बैठ के सोचा, एंड देन ही थॉट कि लेट्स गिव सर्विस टू द वन. ठीक है, अब वो किसी का सर्वेंट बनना चाहता था. किसका सर्वेंट बनना चाहता था? जो कि इस एंटायर अर्थ में सबसे ताकतवर हो. ठीक है, the strongest animal or the strongest creature of the earth
वुड बी हिज मास्टर, ठीक है, डॉग उसी को अपना सर्विस देगा। सो ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर। अब वो निकल गया अपने सैर पे कि वो अपना ऐसा ही एक मास्टर ढूंढ के लाए। ओके, चलो, he walked and he met a kinsman of his, ठीक है। सो यहाँ पे जो किन्समैन अंडरलाइन हुआ है, इसका मतलब क्या है? किन्समैन का मतलब है उसके ही फैमिली रिलेटिव। ओके, सो यहाँ पे उसका फैमिली रिलेटिव कौन था? अ बिग वुल्फ हु वाज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वाज फियर्स, ठीक है। सो यहाँ पे वो अपने एक सगे रिश्तेदार से मिलता है जो एक वुल्फ था, ठीक है। एंड नाउ he found that the wolf was very big, बहुत बड़ा है, and he was strong and fierce, मतलब बहुत ताकतवर है, और fierce मतलब बहुत ही खूंखार है। ओके, so where are you going dog? Now the wolf is asking कि कहाँ जा रहे हो? ओके, I am looking for someone to take up service with, ठीक है। अब डॉग बोलता है कि मैं ऐसे किसी को ढूंढ रहा हूँ जिसको मैं अपनी सर्विस दे सकूँ, जिसकी मैं गुलामी कर सकूँ, ठीक है। Would you like to be my master wolf? I don't see why not. ओके, सब वुल्फ बड़ा खुश है कि डॉग जब बोला उसको कि क्या आप मेरे मालिक बनोगे, सो वुल्फ इज वेरी हैप्पी कि अरे वाह शाबाश, अब मैं मालिक बनूंगा और कोई मुझे मेरा सर्विस देगा, मुझे सर्विस देगा। ओके, सो ही वॉज वेरी हैप्पी एंड ही अल्टीमेटली सेज यस, कि हाँ इमीडिएटली, कि लाइक हाँ हाँ क्यों नहीं, व्हाई नॉट। द wolf said and this agreed upon, the two of them went on together। अब ये दोनों उनसे बातचीत हो जाता है एंड ये दोनों निकल पड़ते हैं एक साथ। ओके, they walked and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed it, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest, ठीक है। एंड ऑल ऑफ अ सडन ये दोनों चल रहे थे एंड सडनली वुल्फ क्या करता है, ऐसे सूंघता है, ठीक है, एंड उसको कुछ खुशबू आता है जिसको वो सूंघने के बाद ना वो छुपने लगता है, ठीक है, जंगल में जाके छुपने लगता है। द डॉग वॉज मच सरप्राइज्ड, व्हाट कम ओवर यू मास्टर, ही आस्क्ड, एंड नाउ द डॉग इज सेइंग कि क्या हो गया मास्टर, अब छुप क्यों रहे हो, व्हाट हैज फ्राइटेंड यू सो, एंड आपको अभी किस चीज से डर लगा, क्या हुआ। Can't you see there's a bear out there and he might eat up both of us, you and me, ठीक है। तो अब ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो बियर, ठीक है, अब वुल्फ बोलता है कि देखो सामने बियर खड़ा हुआ है, ठीक है, वो एक साथ हम दोनों को खा सकता है, तुमको क्या पता नहीं है। ओके, seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him। अब डॉग का तो दिमाग में पड़ा है कि जो सबसे स्ट्रॉन्गर होगा, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, मैं तो उसी को अपना सर्विस दूंगा, ठीक है, मैं उसी की गुलामी करूंगा। अब ही फाउंड दैट द वुल्फ वाज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट, उससे भी स्ट्रॉन्ग कौन था, हमारा बियर था। सो अब ये चला बियर की गुलामी करने, ठीक है, एंड ही लेफ्ट द वुल्फ एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर, ठीक है, एंड ये बियर के पास चला जाता है एंड उसको बोलता है कि क्या आप मेरे मालिक बनोगे। द बियर एग्रीड टू दिस रेडिली एंड सेड, लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउज, आई विल किल अ काउ एंड देन वी कैन बोथ ईट आवर फिल, ठीक है। अब बियर बड़ा खुश कि भाई मालिक बनना है, देखो मेरे सर्वेंट आ गए, अब मालिक बनना है, मैं तो बड़ा खुश हूँ, ठीक है। एंड नाउ ही एग्रीज अपॉन दैट एंड ही सेज कि ठीक है चलो एक गाय का झुंड ढूंढते हैं, फिर आई कैन किल अ काउ एंड देन वी विल बोथ ईट आवर मील, ठीक है। ओके, दे वॉक्ड ऑन एंड सून सॉ अ हर्ड ऑफ काउज, बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट दे वर स्टॉप्ड बाय अ टेरेबल नॉइज, ठीक है। अब वो जो गाय के झुंड के पास पहुंचते हैं मतलब मारने के लिए, सडनली दे हियर अ नॉइज, ठीक है, बहुत सारा चिल्लम चिल्ली सुनाई देता है, एंड द काउज वर मूविंग लाउडली एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। एंड ऑल ऑफ अ सडन ये सब नॉइजेस सुन के जो काउज थे वो डर के इधर उधर भागने लगे, ठीक है। The bear looked
from behind a tree and then he too ran hastily deeper into the forest. अब बियर भी इधर उधर देख के फिर वो थोड़ा चौंक गया एंड उसके बाद वो भी भागने लगा, ठीक है, फॉरेस्ट के अंदर. Now why did I have to come here? said he to the dog. ठीक है, अब डॉग पूछता है कि आपका क्या हुआ मालिक, आप क्यों भाग रहे हो? It is the lion who rules the forest in these parts. ठीक है, सो इस सारे इलाके में कौन रूल करता है? लायन रूल करता है, शेर. ठीक है, द किंग ऑफ द जंगल. ओके, द लायन. हु इज ही? अब डॉग बेचारा इनोसेंट सा क्रीचर पूछता है कि लायन कौन है वो? ठीक है, डोंट यू नो ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ. एंड अब भालू बता रहा है कि अरे तुझे पता नहीं है, वो पूरे जंगल का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल है. वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बियर. आई वांट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन द अर्थ. ठीक है, सब कुत्ता बोलता है बाय बाय, मैं जा रहा हूँ. देखो बाय बाय कर रहा है. सो मैं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे कोई ऐसा मास्टर चाहिए जो कि पूरे अर्थ में सबसे ताकतवर हो. ठीक है. And of the dog to ask the lion to be his master. The lion agreed to it. The dog stayed with him and served him for a long time. ठीक है, अब देखो कुत्ता चला गया शेर के पास कि भाई मालिक बन जाओ मेरे. एंड ही वाज वेरी हैप्पी कि चलो बन जाओ. ठीक है, मतलब लायन वाज एग्रीइंग अपॉन दैट. ठीक है, अब ये दोनों मास्टर एंड सर्वर हो गए. ठीक है, सर्वेंट हो गए. एंड देन डॉग स्टार्टेड टू गिव हिज सर्विस टू लायन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. बहुत दिनों तक उसको मतलब सेवा किया लायन का. It was a good life and he had nothing to complain of, for there was no stronger beast in the forest than the lion, and no one dared to touch the dog or offend him in any way. अब देखो, लायन था जंगल का किंग एंड डॉग था उसका सर्वेंट. अब बाप रे बाप, मालिक के किंग के सर्वेंट को कोई हाथ लगाएगा, किसी की हिम्मत है? सो ही वॉज वेरी हैप्पी, द डॉग वॉज वेरी हैप्पी कि वाह ऐसा एक मालिक मिला जिसके बाद और कोई मेरे को कुछ उल्टा सीधा बोल नहीं रहा है. नोबडी इज ऑफेंडिंग मी, नोबडी इज लाइक सेइंग एनीथिंग, नोबडी इज डेयरिंग टू इवन टच मी. मतलब कितना खुशी. सो ही वाज वेरी हैप्पी. ओके, बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड along the path that ran amid bare cliffs, when all of a sudden the lion stopped. He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such a force that a hole formed there. ठीक है, so एक दिन क्या हो रहा था, कुत्ता और वो लायन दोनों ही चल रहे थे. All of a sudden lion just कुछ होता है and he stops and sniffs and उसके बाद ना he becomes very angry and ऐसा ही पंजा मार देता है ग्राउंड पे. ठीक है, एंड इतना गुस्से में इतना जोर से पंजा मारता है कि देयर बिकम्स अ होल. ठीक है, एक मतलब गड्ढा हो जाता है वहां पे. व्हाट इज इट मास्टर, इज एनीथिंग रॉन्ग? ठीक है, एंड नाउ लाइक ऐसा जब किया उसने, सो नाउ द डॉग इज आस्किंग कि क्या हुआ मास्टर, कुछ हुआ क्या, कुछ गलत शलत हुआ क्या हुआ? I smell a man coming this way, the lion said. And now the lion is telling कि I can smell a person who is coming to this way. ठीक है, human. ठीक है, इंसान, हमारे जैसे इंसान. We would better run for it or we will be in trouble. ठीक है, so lion बोलता है यहाँ से भाग चलो नहीं तो हम लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी. Oh well, then I will say goodbye to you, lion. I want a master who is stronger than anyone on the earth. ठीक है, अब कुत्ता बोलता है कि तब तो मेरे को आपको बाय बाय बोलना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मेरा मालिक हो वो इस पूरे वर्ल्ड में सबसे ताकतवर हो. ओके, and of the
dog went to join the man and he stayed with him and served him faithfully. This happened long ago, but to this day the dog is the most loyal servant and knows no other master. ठीक है? So अब तक ये बहुत सालों पुराने की बात है, but still now the dog is giving his service to the man. So now you know who is the strongest creature of this world. Yes, it's the humans. Okay. So this is the end of the story and the end of the video. And if you like the video, please like, share and comment. And do not forget to subscribe our eTutions channel. And again, if you want to grab the opportunity of this quality education, then please do not forget to download the eTutions application from the Google Play Store, because we provide quality education for CBSE and BSc. Thank you.